Hello students, today we will discuss Newton's third law of motion. First of all, we will learn what is the statement of Newton's third law of motion. As we know, for every action there is equal and opposite reaction. Basically, action and reaction always occur in pairs. Both are forces. So to every action there is equal and opposite reaction. This is the main point. To every action there is equal and opposite reaction. This concept of opposite reaction is indicated by negative sign. Like if we take that FAB is the force acting on body A due to B. Similarly, FBA is a force acting on body B due to A. So what I will write, this FAB will be equal to FBA. That means both forces are equal. So you can say these are equal in magnitude. And their direction is opposite. This is indicated by this negative sign. So FAB equal to minus FBA, or you can also take F1 equal to minus F2. This 1, 2, AB, BA, this is only the suffix. That is indicating two forces. Now, these forces are equal in magnitude and opposite in direction. Now, one concept is there. Basically, the forces are acting on different bodies. This is a different concept which you have to understand. Forces acting on different bodies. So they will not cancel each other. So there can be the point, if action and reaction are equal and opposite, so why don't they cancel effect of each other? Reason being, suppose you are taking this example, let this block is placed over this table. So its weight will act vertically downward. This is one force, you can say it as the action. This block is exerting a force on this table, so this is the action. Now what will happen? This table will exert an equal and opposite force, but you can see here forces are equal in magnitude but direction is opposite. So this is forming equal and opposite reaction. So now block is exerting force on the table. One body is table and the table is exerting force on the block. That means फोर्सेस बेशक ये दोनों एक ही मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन इन दोनों का टर्निंग इफेक्ट किस पर आ रहा है? अलग अलग बॉडीज पर आ रहा है. तभी हम कहेंगे कि these forces cannot cancel each other. Why? Because they are acting on different bodies. Now let me discuss examples of Newton's third law of motion. What is a practical application where this law will be required? Very first example which I am taking, that is walking. When a person walk on the road, what do you do? To walk on the ground, suppose this is the ground and we have to walk on this surface, what we do? We push the ground in the backward direction. As a reaction, ground pushes our foot in the forward direction. अब देखिए यहाँ पर हम एग्जैक्टली इसको इस तरह से नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें कुछ रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं. तो हम सिंपली ये कहेंगे कि ग्राउंड पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं बैकवर्ड और ग्राउंड उसका दे रहा है एक रिएक्शन जो दे रहा है आगे. तो इस रिएक्शन की वजह से हम आगे मूव करेंगे. ये सिर्फ समझने के लिए, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट इस तरह से डायरेक्शन में होता है. तो आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम मूव करते हैं तो हमारा फुट क्या करेगा? ग्राउंड को नीचे की तरफ प्रेस करता है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करता है और उसकी वजह से ग्राउंड भी एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देता है. जो रिएक्शन मिलता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा वॉकिंग ऑफ अ पर्सन के लिए. यानी इसका मतलब जब भी हम आगे मूव कर रहे हैं वो हमारे एक्शन से नहीं है, हमने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से नहीं मूव कर पा रहे. तो कौन हमें एनेबल कर रहा है मूव करने में? कौन कर रहा है? वो कर रहा है रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड. रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड एनेबल अस टू वॉक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो नाउ आफ्टर दिस लेट वी टेक अनदर एप्लीकेशन. देयर कैन बी मेनी एप्लीकेशन. स्विमिंग. मेनी ऑफ यू नो हाउ टू स्विम. जनरल कॉन्सेप्ट सबको पता है कि स्विमिंग में क्या करते हैं. अब यहाँ पर अगर ये वाटर सरफेस है, यहाँ स्विमर मूव कर रहा है, स्विमर को आगे जाना है, तो क्या करेगा? वो हैंड्स की हेल्प से वाटर को पीछे की तरफ धकेलना शुरू करेगा. लेकिन होता क्या है?
हाथों से या पैरों से, जब वो उसको पीछे की तरफ धकेलता है तो पानी से उसको क्या मिलता है, रिएक्शन, जो उसको आगे की तरफ मोशन कराता है। अगर आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं भी पता तो भी हमें पता चलता है, एक जनरल पर्सन भी ये कह देगा कि नॉर्मल केस में कि हम अपने फीट की हेल्प से या हैंड्स की हेल्प से वाटर को बैकवर्ड थ्रो करते हैं, और लेकिन मूव कहाँ करते हैं, फॉरवर्ड। तो हम मूवमेंट कैसे कर पाते हैं, क्यों, हम लिखेंगे क्योंकि रिएक्शन ऑफ वाटर, ये क्या है, रिएक्शन ऑफ वाटर है जो हमें आगे मूव करने में हेल्प करता है। So, as we have done in the case of walking, same in the case of swimming. Another example you can take, suppose you are climbing up a rope. Climbing up, मान लो आपने ये रोप की हेल्प से ऊपर कहीं हिल पे जाना है या किसी भी पॉइंट पे जाना है, तो अगर आप इमेजिन करके देखिए कि आपको इस रोप को पकड़ के ऊपर जाना है, तो आप क्या करते हो, आप रोप को नीचे की तरफ खींचते हैं। जब आप इसे नीचे की तरफ पुल करते हैं, लेकिन आप क्या होते हैं, आप तो ऊपर जा रहे हो। तो इसका मतलब भी अब न्यूटन थर्ड लॉ जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उसमें क्या स्टडी कर रहे हैं कि हमने तो फोर्स लगाया डाउनवर्ड, वो हो गया एक्शन, लेकिन ये रोप भी तो आपको एक रिएक्शन देगा, एक फोर्स देगा, जिसकी वजह से हम ये ऊपर मूव कर पा रहे हैं। यानी कि कभी भी फॉरवर्ड मोशन होता है तो हम एक्शन की वजह से मूव नहीं करते हैं, रिएक्शन की वजह से मूव करते हैं। Either the case of walking or the case of swimming or climbing up a rope with the help of climbing up a hill with the help of string or a rope. Now, when we are taking an example, when man is moving out of a boat. So, when you can say man, you can name it as a sailor. A sailor is in a boat. Suppose this is a boat. This is at rest near a river bank. As the sailor jumps from the boat to river bank, यानी river bank पर when the sailor is moving out, boat is pushed in the backward direction. Boat is pushed away from the bank. Why? Because as the person moves out from the boat, it is moving on the shore in the river bank. Then by the reaction, the boat is moving in the backward direction. So again, you can say this is due to equal force of action and reaction. यानी पर्सन बाहर आ रहा है, दैट इज एन एक्शन, और उसकी रिएक्शन की वजह से बोट जा रही है पीछे। बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हैं। फ्लाइंग ऑफ जेट प्लेन, फ्लाइंग ऑफ जेट प्लेन्स, रॉकेट्स। देखिए जेट प्लेन्स एंड रॉकेट्स में क्या होता है, जेट प्लेन्स या रॉकेट्स अगर हम लेते हैं तो यहाँ से ये पीछे नोजल होता है। अब क्या होता है, इन द रॉकेट फ्यूल इज बर्न्ड एंड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड हॉट गैसेस। अब ये क्या होता है, ये जो गैसेस होते हैं, दीज आर मेड टू मूव आउट फ्रॉम अ नोजल, यहाँ मान लो हम नोजल जो ओपनिंग कह रहे हैं, दीज आर मूविंग आउट फ्रॉम दिस नोजल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये गैसेस तो नीचे की तरफ आ रही हैं, यानी गैसेस एक्शन हो गया डाउनवर्ड। अब होगा क्या, एज अ रिएक्शन रॉकेट इज मूविंग इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन। सो बेसिकली जो फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल बर्न करने से वो जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो इस नोजल से, इस ओपनिंग से नीचे आएगी। उसकी वजह से, उस एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से रिएक्शन मिलेगा एरोप्लेन, इसको जेट प्लेन को या रॉकेट को, जिसकी वजह से जेट प्लेन कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल आई विल टेक, केस ऑफ हॉज पाइप। हॉज पाइप क्या होता है, देखिए हॉस पाइप में क्या होता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी जो फायर पर्सन्स होते हैं, फायरमैन होता है, दे आर कैरिंग अ बिग पाइप, उसको बहुत टाइट होल्ड करते हैं, बहुत ब्रॉड सा पाइप होता है। टू पुट आउट फायर, फायरमैन डायरेक्ट अ पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑन फायर फ्रॉम दिस होस पाइप। एक पाइप के थ्रू वाटर का स्प्रे करते हैं फायर के थ्रू। वाइल डूइंग सो, होस पाइप इज हेल्ड वेरी टाइटली एंड स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली पकड़ना पड़ता है क्योंकि वाटर इसमें बहुत ज़्यादा फ्लो से आ रहा होता है। सो वाइल डूइंग सो, होस पाइप हैज़ टू बी होल्ड वेरी स्ट्रांगली बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू मूव बैकवर्ड, क्योंकि वाटर आगे आ रहा है तो उसकी रिएक्शन मिलेगी पीछे। अब अगर इस पाइप को बहुत टाइटली नहीं पकड़ेंगे तो वो पाइप क्या होगा, हाथ से छूट जाएगा। सो एज द वाटर रशेज आउट एट ग्रेटर स्पीड फ्रॉम दिस हॉस पाइप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, hose pipe have a tendency to move backward due to, again this is due to equal and opposite reaction. तो बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हैं, हमने एक ही पॉइंट पे वर्क किया है कि एक्शन हो रहा है एक डायरेक्शन में और उसके इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिल रहा है, तो तभी फायर पर्सन्स जो होते हैं वो हॉस पाइप को टाइटली होल्ड करते हैं। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन योर NCERT ब्लू पैच क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग,
Now next application is recoiling of gun. So within it, recoiling means gun will move backward. सबसे पहले हमें यही समझना है रिकॉइलिंग का मतलब क्या है. सी व्हेन द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम दिस गन, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, बुलेट तो बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे चली जाती है और जो गन होती है वो स्लाइटली बहुत हल्का सा हमें पीछे महसूस होता है कि ये पीछे मूव कर रही है. बट एक्चुअली इसमें होता क्या है, अगेन इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ. हम कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो एक पॉइंट तो हमें समझना है कि इसमें लगने वाला जो फोर्स है वो सेम है, यानी बुलेट पर भी और गन पर भी, दोनों पर ही सेम फोर्स लग रहा है. सो व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, कभी आपने देखा होगा कि कई बार फन एक्टिविटीज़ में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे राइफल फायर करते हैं. तो राइफल को आपको जब बुलेट फायर करने से पहले शोल्डर पे टाइटली हेल्ड करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि उसमें पीछे झटका लगता है. So when bullet is fired from this gun recoils, यानी moves backward through a small distance. So on firing, gun exert force on the bullet, यानी bullet पे force लग रहा है forward direction में, and bullet exert equal force on gun in the backward direction. तो बेटा एक point ध्यान रखना है कि force दोनों पर ही same है, bullet पे भी और गन पर भी. अब अगर हम इस पॉइंट को समझें, अगर ये क्वेश्चन आता है कि बुलेट तो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर जाती है, लेकिन गन की पीछे की स्पीड या पीछे जितना झटका लगता है लेकिन गन उतना ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं कर पाती है. तो इसके लिए हम लेते हैं हेल्प न्यूटन सेकेंड लॉ का. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब अगर फोर्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो हम कहते हैं कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a. योर एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा. अब हम कहते हैं कि बुलेट पे और गन पे दोनों पर लगने वाला फोर्स है सेम. तो अगर मैं ये कहूँ कि mg हो गया मास ऑफ गन एंड mb हो गया मास ऑफ बुलेट, ऐसे ही ag हमने ले लिया, g सफिक्स हमने गन के लिए लिया है और b सफिक्स हमने लिया है बुलेट के लिए. तो यहाँ पर ab हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट. तो मैं कहती हूँ कि दोनों पर, गन पर और बुलेट पर सेम फोर्स लग रहा है, यानी कि mg इंटू एजी इक्वल टू f, ये एक्शन, और यही एक्शन यानी रिएक्शन जब बन जाता है MBAB. ये मैथमेटिकल स्टेप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट. अब यहाँ पर हम कहते हैं कि दोनों पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है, तो हम ले सकते हैं mg अपॉन mb इज इक्वल टू ab अपॉन ag. यानी देख रहे हो कि गन का एक्सिलरेशन गन के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसी रिलेशन से. तो बेसिकली हम क्या कहेंगे कि मास ऑफ गन बहुत ज़्यादा है मास ऑफ बुलेट से. हम इसको एक और फॉर्म में लिख लेते हैं, हम रिवर्स कर लेते हैं क्योंकि हमें चेक करना है कि गन का एक्सेलरेशन कितना है. अगर मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर दूं, mb अपॉन mg इक्वल टू दिस इज योर ag अपॉन ab, यानी एक्सेलरेशन ऑफ गन को स्टडी कर रहे हैं. तो अगर हम देखते हैं कि मास ऑफ गन बहुत ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू बुलेट, होता भी है, बुलेट का मास कितना होता है, ग्राम में होता है, और गन का मास हैवी होती है, किलोज में होती होगी. तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ गन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट. तो अगर इसका एक्सेलरेशन कम है तो इसका मतलब बेशक बुलेट पर, गन पर भी बुलेट के इक्वल ही फोर्स लगता है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितना एक्सेलरेट हो रहा है वो बहुत कम होता है. सो दैट्स वाई वी से दैट व्हेन देयर इज रिकॉइलिंग ऑफ द गन, इन दिस पर्टिकुलर केस force is same on both bullet and gun, but we know that acceleration is inversely proportional to mass. So that's why you can say that mass of gun is very large as compared to bullet. So acceleration of gun will be very small. So that's all for this Newton third law of motion. This is basically theoretical concept. You can learn or you can discuss many more application on the basis of Newton's third law. So revise these concepts carefully and thoroughly, as well as read each and every line from your NCERT book. Thank you. Have a nice day.